A very good morning to everyone, and welcome to the Utthan session today. So, the last week we started the new series on the topic developing patience, which was taken by Sister Chanda. So, I hope all of us could learn from it. And today is the second session, and we have Sangeeta Didi to take it. Didi, welcome. Om Shanti, and over to you. Om Shanti, good morning, and good morning from Mount Abu. I'm in Mount Abu meeting from here, so I'm sure you will be getting the vibrations, right? And the vibrations to the extent that you will also all be motivated to come over here sometimes. When you place your request that I would like to go to Mount Abu. So, anyways, today's beautiful theme. Is it required? Patience. How many of you feel that I'm very patientful? Patience, क्योंकि it is a personality, no? Patience also, just like anger is a personality. So as such, we might be having patience for to some people somewhere जहाँ मेरा चलता नहीं है, जहाँ मुझे चुपचाप रहना पड़ता है, मेरी स्टेटस उतना हाई नहीं है, हम कहते चुप बैठो and then that चुप बैठना we call as patience. First of all, ठीक है, physically चुप बैठ गए, but is that patience or is that a victim feeling? What do you feel? Is that a patience or is that a victim feeling? It is a victim feeling, right? Because क्योंकि patience का मतलब ही है कि where patience अर्थात where I don't feel any problem. Like अगर मुझे ये लगता है कि क्या है चुप बैठना, पेशेंस का मीनिंग क्या होगा? 4 things. Patience is first, see, one sec, I'll just show you. Yeah, patience is one where I feel, one is cool and then composed, and second, then T, tolerant, and fourth is understanding. CCTU, this we call as patience. Because now suppose I'm keeping quiet because I cannot, चलता नहीं है यहाँ मेरा, ऐसा कुछ करो तो चलता नहीं है doesn't mean that you are patient. वो तो एक मजबूरी हो गई ना. So patience is nothing but, I think I'm not able to see you just because of this new. Okay. So patience means where I understand. Sorry, there is a small problem over here. Okay. So CCTU, cool. अंदर अभी thought नहीं चल रहा है. I am understanding. And composed means spontaneous नहीं है. And third is tolerant. Tolerant, not a victim feeling, but I'm keeping quiet and with understanding. Therefore, you understanding. Fourth is you. So, what I'm understanding not only what they are speaking, but why they are speaking like that. हमने खाली understand कभी किया ना? How they are speaking, how dare they speak like that? उनको तमीज नहीं है. हम सोचते that is called. तो first is understanding कि that soul, उसका एक संस्कार है.
जोर से बोलने का, डाउन करने का। तो अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज द संस्कार ऑफ द सोल, because when you understand, it is their sanskar. Maybe sometimes it is not our mistake. कभी कभी हम शुरू बहुत अच्छे से करते हैं, दो वी नो कि वी शेयर अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, और इट इज अ वेरी हार्ड रिलेशनशिप, बट स्टिल वी नो कि उस सोल का एक संस्कार है, एंड वी स्टार्टेड विद अ वेरी गुड नोट, अच्छे से स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही थोड़ा कुछ बोला, तुरंत फिर एक रिएक्शन आया। अब रिएक्शन आया, यू हैव दैट, यू हैव टेकन दिस सेशन, आपने सोचा नहीं फिर भी मैं कूलली बात करूं, लेकिन फिर वो रिएक्शन उसका आता गया और जोर से, एंड देन यू से कि देन आई आल्सो स्टार्टेड बर्स्टिंग, you lose your patience. तो now here that understanding is required कि ठीक है, वो बोल रहा है, वो जोर से भी बोल रहा है, वो रिपीट भी कर रहा है, बट इट इज दैट संस्कार, तो दैट संस्कार ऑफ द सोल, एंड इट माइट नॉट बी माई मिस्टेक, एंड चल ठीक है, बोलने दो उनको जैसे बोलना है, बिकॉज उस सिचुएशन में अब इफ आई दैट टाइम, अगर मेरा यहाँ प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है, वहां बर्स्टिंग सिचुएशन है, और इधर चलता रहता है क्या है, क्या समझते हैं, हाउ डेयर दे डू दिस एंड व्हाई एवरी टाइम, कितनी बार कह दिया, 1 2 3 स्टेटमेंट्स, 2 इज इनफ, और यहाँ बर्स्टिंग शुरू हो गया, और यहाँ बर्स्टिंग शुरू होते ही फिर यहाँ बर्स्टिंग शुरू हो जाता है, एंड देन व्हाट विल हैपन, बात वो मुद्दे की बात नहीं होती है जिस बात से शुरू किया, कुछ और बात पिकअप हो जाता है, एंड देन द सिचुएशन दिस प्लस यू डोंट नो एन नंबर, उस दिन भी ऐसा किया था, तब भी ऐसे करते हो, हमेशा ऐसे करते हो, नाउ इट डजंट पर्टेन टू दैट पर्टिकुलर सीन, यू जस्ट डोंट नो कितने नंबर ऑफ सीन्स आ जाते हैं। सो दिस इज वेयर नाउ दिस अंडरस्टैंडिंग द फोर्थ पार्ट, सी टॉलरेंट एंड यू अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि उस आत्मा का संस्कार है, बिकॉज इफ वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, इन अदर वर्ड्स कि वी गिव लॉजिक टू दैट मिस्टेक, क्या है वो करता ही ऐसा है, और बिना बात की चिल्लाना होता है, नो, दैट वे वी गिव द लॉजिक to ourselves, or even if I quote this incident to any other person, तो नेचुरली ना किसी को भी गुस्सा तो आएगा ही, अब दूसरा भी क्या कहेगा, नेचुरल है, इतना थोड़ी चलता है। सो देन वंस आई गेट दिस वैलिडेशन कि नेचुरली ना होगा ही, कब तक चुप बैठेंगे, आई आई गेट दिस एंडोर्समेंट, means I feel I'm right, and then this sanskar becomes, this is my natural, and therefore when it is natural I will go on repeating it, and I'll repeat it because ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि सब लोग, किसी को भी पूछा या किसी को भी जब मैंने नरेट किया ये इंसिडेंट, सब कहते नेचुरली, कभी भी ऐसे थोड़ी चलता है, किसी को भी गुस्सा आएगा ही, और ऐसे चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। Now, why this endorsement I get from people? Because कलयुगी सिचुएशन है ना, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में कलयुग के संस्कार को वैलिडेशन अच्छा सा मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप चुप बैठ जाएंगे तो लोग कहेंगे तुम पागल है, पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, ऐसे थोड़ी किया जाता है, ऐसे तो तू कभी लाइफ में सक्सेसफुल होगा ही नहीं। सो आई विल इनफैक्ट गेट अपोनेंट्स टू माई positive sanskar, but if it is negative, I'll really get many friends. Why? Because it is Kali Yuga. So once I get that endorsement, I stay in that comfort zone. अब मेरा एक comfort zone बन जाएगा कि कोई कुछ कहेगा, एक बार हम सुनेंगे, हो सकता है 2 बार सुन ले, फिर हम नहीं सुनने वाले, फिर मेरा मुंह खुल गया,
फिर मैं so then my this kind of sanskar which actually if we just review it later on, पता चलता है ये अच्छा नहीं किया मैंने, लेकिन आई फील कि नहीं कर लिया, अच्छा हो गया. सो आई बी इन दैट कंफर्ट जोन. क्योंकि बहुत समय तक कोई चीज आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आप एक कंफर्ट जोन में बैठ जाते हो, और बिकॉज वो कंफर्ट जोन में है आप निकल नहीं पाते हो, एंड यू फील दिस इज द राइट, दिस इज द लाइफस्टाइल. तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का मतलब ही है यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. और इसलिए जैसी बात हुई, बिकॉज नेचुरल हो गया ना संस्कार, और संस्कार जब नेचुरल हो जाता है तो उसको कभी कभी बात की भी जरूरत नहीं होती है. बिना बात किए अभी आपने शुरू ही नहीं किया और वो व्यक्ति वैसा का वैसा बोलने लग जाता है. तो बिना बात के झगड़े हो जाते हैं. झगड़े होने के लिए बात की भी जरूरत नहीं होती है. क्यों? और फिर हम सोचते कि उसने ऐसा किया बस फिर. एंड ऑलवेज बोथ ऑफ देम, no one wants to give up. It is not of even giving up. No one wants to listen to each other. तो पेशेंस का मतलब ही है कि इफ ऐसा है भी, अच्छा चलो मैंने उस समय कर भी लिया, नहीं करना चाहिए, सपोज मैंने बाद में सोचा भी कि क्या क्या बात होगी, और एक्चुअली जिस बात के लिए हम एक दूसरे से बात करने भी लगे थे वो बात तो साइड में रह जाती है, और फिर दूसरी दूसरी एंड सो मेनी थिंग्स, एंड देन यू से इट्स ऑल वेस्टेज. क्या बात करने आई थी और हो क्या गया. और फिर कभी भी इससे कुछ भी बात करो ना, इट इज यूजलेस. व्हाई दिस ऑल? बिकॉज एवरी टाइम दैट थिंग हैपन्स. अब ये एक हीट ऑफ द मोमेंट, हीटिंग हो गई दोनों में. अब इसको क्या किया, वैलिडेट किया. बोथ ऑफ देम कुड बी कि नहीं नहीं वो कहते हैं मैं राइट हूं, वो कहते हैं मैं राइट हूं. बोथ ऑफ देम एंडोर्स्ड, एंड देयरफॉर दैट दिस इज राइट, एंड इट इज नाउ रजिस्टर्ड इन मी कि आई एम राइट, ही इज रॉन्ग, एंड ही डिड दिस मेनी टाइम्स. तो ये मैंने अंदर रजिस्टर कर लिया. अब जब रजिस्टर कर लिया तो जब भी बाद में वो कुछ भी करेगा ना, तो नाउ द रिएक्शन विल बी फ्रॉम दैट, फ्रॉम द फुल स्टॉप जो पहले वाले सिचुएशन से हुआ था. तो पहले वाले में 4 स्टेटमेंट का हीटेड कुछ हीट चला एंड वो फुल स्टॉप हुआ. अब जो चलेगा थोड़ा सा बोलने की जरूरत है, वो 4 का जो हीट है अंदर है वो इंक्लूड, वो ऐड हो जाता है, और अब वो फर्स्ट स्टेटमेंट में वो 4 का हीट आ जाता है. तुम तो ऐसे ही करती हो. तो एक्चुअली इसलिए मेन बात हमारी बहुत बार रह जाती है और उसका सोल्यूशन होता नहीं है, और बात पे बात दूसरी चलती रहती है. और फिर हम कहते हैं कि कितना घंटों आर्ग्यूमेंट चला हमारा. कभी कभी एक एक रात को लेट हो जाता है जस्ट इस आर्ग्यूमेंट्स में. एंड देन वी से वी डोंट वांट टू गिव अप, क्योंकि देंगे तो ही विल जस्ट पाउंस अपॉन अस, he or she will always pounce upon me, it's better ऐसे बोलते रहो. अच्छा हम कहते भी रहे, होता भी रहा, हीटेड भी चलता रहा. आज अगर नेट रिजल्ट देखे, आर वी एट पीस? डू वी फील कि पहले मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था, अब बहुत गुस्सा आता है? डू वी एक्सपीरियंस दैट? हाउ मेनी ऑफ अस फील दैट? क्यों? या तो मतलब क्या हुआ, every situation में the more I endorse my energy, negative energy, this spontaneous energy, I am adding that sanskar to me. I am strengthening that sanskar, and when it becomes a sanskar, 2 3 वो रिपीट होता रहता है.
इसलिए बहुत बार हम लोग कहते हैं कि एक्चुअली ना मेरा ये क्रोध का नेचर है, दो आई नो इट्स नॉट राइट बट इट इज माई संस्कार। एंड देन वी से कि ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम ना, एक दो दिन में थोड़ी जाता है, एक दो दिन में तो जाता नहीं है, लेकिन ऐसे एक दो दिन में नहीं जाता है, नहीं जाता है करके कितनी बार हम ऐड करते गए अपने आप को, और वैसे करते गए ऑलवेज वो संस्कार को, क्योंकि एक दो दिन में तो जाता नहीं है, तो कल भी हो जाएगा, आज ही तीन चार और इंसिडेंट हो जाएंगे, फिर कहते हैं इतना जल्दी थोड़ी जाएगा, फिर आज का और ऐड हो जाएगा, देन इट विल बिकम, इट्स लाइक मेकिंग द ग्रूव मोर डीपर, फिर कल फिर शुरू होगा, फिर ऐड करेंगे, फिर मेकिंग द ग्रूव मोर डीपर। अगर ऐसे ग्रूव डीपर होके फिर हम कहते हैं एक दो दिन में थोड़ी जाता है, एक हफ्ते में थोड़ी जाता है, आज का पेशेंट्स का सेशन सुना थोड़ी चला जाएगा, नाउ किस दिन जाएगा फिर वो, एक हफ्ते तक अगर चलाता भी रहे ऐसे, ऐड तो होता जा रहा है ना ग्रुप, जितनी बार मैं वो एनर्जी क्रिएट करती जा रही हूँ इट इज एडिंग, और ऐड करते करते एक हफ्ते बाद वो और पावरफुल होगा या कम होगा। हाउ मेनी ऑफ यू फील इट बिकम्स वेरी पावरफुल, एंड देन वी से कि अच्छा तो नहीं लगता है बट क्या करें, नो चॉइस। सो आई एम मेकिंग इट वेरी पावरफुल बिकॉज एक बहुत अच्छा कंफर्ट जोन हमने बना लिया, एक दो दिन में थोड़ी जाता है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। और ऐसे करते करते 1 मंथ के बाद भी अगर देखा जाए वो संस्कार वैसा का वैसा है। सो नाउ वंस आई हैव रियलाइज्ड, ठीक है उस समय देयर हैड बीन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, आई लॉस्ट माय कंट्रोल, और इट कुड बी इवन आई गॉट हर्ट, ठीक है दैट टाइम आई वाज नॉट इन माय कंट्रोल, एग्रीड, इंसिडेंट हो जाए, थोड़ा शांति से बैठ के रिव्यू करें, वॉज आई रॉन्ग, मेरी क्या गलती थी, एंड अगर मेरी गलती थी तो क्या गलती थी मेरी, उसकी जितनी थी जो थी वो ठीक है, मेरी कितनी थी उसमें कंट्रीब्यूशन, एंड विल अंडरस्टैंड what I felt and the what I felt after what he or she told, वो जो मेरी फीलिंग्स थी ना वो मेरी मिस्टेक थी, एंड दिस मिस्टेक, तो रियलाइजेशन का मतलब है कि इवन इफ दैट टाइम आई वैलिडेट, now I think this energy is wrong for me, and once I feel this is wrong, now I just रिव्यू रिएक्शन रिप्ले करे कि अगर सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए, इज देयर अ चॉइस फॉर मी टू थिंक, क्या मैं दूसरी तरह से सोच सकता हूं उस समय, इज देयर अ चॉइस इन दैट सिचुएशन, चॉइस होता है या नहीं होता है, क्या कहेंगे, चॉइस होगा। अब ये चॉइस क्या था कि आई कुड हैव बीन दिस दिस दिस, वी नो मेरी सो मेनी लिस्ट, कि मैं थोड़ा शांत रह जाती, थोड़ा उस मूवमेंट को पी जाती, नो फिजिकली भी, तो नाउ आई गॉट दिस चॉइस, नाउ द इमीडिएटली द नेक्स्ट सीन रेडी रहता है, सीन आफ्टर सीन, एक सीन में कितने, एक दिन में कितने सीन्स आ जाते हैं जहां पेशेंट्स लूज कर सकते, अंटिल 10 o'clock आए थे आपके पास एक इंसिडेंट आए, तो देख लो अभी शुरू ही नहीं हुआ है ऑफिस, एक या दो सीन तो अभी हो गए होंगे, सो इन दैट मैनर पूरे दिन में तो कितने हो जाएंगे। नाउ द मोमेंट वंस मेरा रिएक्शन हुआ, उसके इमीडिएटली बाद हम एक बार बीमार पड़ते ही, हेडेक बहुत सीवियर होता है, हम क्या करते हैं, भाई काम पूरा बहुत करना है, बेटर एक गोली ले लो, नो वी डोंट वांट टू वर्क विद दिस हेडेक, व्हाई, बिकॉज द एफिशिएंसी will be less,
and our mind will be diverted, and therefore sometimes we cannot give 100% to this. So similarly, if I'm a patient inside because I don't have patience, I lost my patience, मतलब मैं patient हूँ, तो जैसे वो सीन कंप्लीट हुआ, लेट मी टेक अ गोली, रियलाइजेशन इज दैट गोली. अब उस रियलाइजेशन में देखे कि ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं हुआ, अब मुझे कैसे करना है. अब वो बात करेगा और फिर मुझे इस तरह से करना है. आई विल चूज माई रिस्पॉन्स. I will choose the energy energy which I want to use during that speech. So when I choose that energy, I am actually giving, I am making the control in my hands. जब हम चॉइस नहीं करते, मीन्स ऐसे तुमने ऐसा किया, नेचुरली फिर मैं ऐसे करूंगी, मीन्स आई डोंट हैव एनी चॉइस. तो इट मीन्स यू हैव, योर चॉइस इज माई चॉइस, क्योंकि नेचुरली तुम ऐसे करेंगे तो मैं ऐसे करूंगी. तो जब दूसरे पर मेरी चॉइस डिपेंडेंट है, दिस इज एंड बिकॉज ऑफ विच आई डू द सेम, एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, क्या करे, हो जाता है. वो ऐसे बोलता है ना, तब मेरा हो ही जाता है. दिस इज कॉल्ड विक्टिम लाइफस्टाइल, विक्टिम फीलिंग, कि ऑलवेज कोई और के अकॉर्डिंग मैं अपना रिस्पॉन्स चूज करती हूँ. सो ये सबसे लाइफ में टू रॉन्ग स्टेटमेंट्स है. वन, देयर आर टू स्टेटमेंट्स. वन, टू मेक, मेरे साथ गलत हुआ, और दूसरा, इन्होंने मेरे साथ गलत किया. फर्क है दोनों में. मेरे साथ गलत हुआ और इन्होंने मेरे साथ गलत किया. कौन सा बेटर है, कौन सा एक्यूरेट है? ए, बी, क्या कहेंगे? इन्होंने मेरे साथ किया, मेरे साथ गलत हुआ. क्या कहेंगे? या दोनों ही राइट है? कौन सा राइट है? अच्छा, कौन सा राइट है? ए. ए गलत हुआ राइट है, तो बी रॉन्ग है. बोथ आर रॉन्ग. मेरे साथ गलत हुआ, एग्रीड, लेकिन इन्होंने मेरे साथ गलत किया, मतलब मैंने कंट्रोल किसको दे दिया? इन्होंने मेरे साथ गलत किया या उन्होंने अपना संस्कार यूज किया? क्या कहेंगे? इन्होंने मेरे साथ गलत किया, बहुत ध्यान से हम सुने स्टेटमेंट को, या उन्होंने अपने संस्कार को उस सीन में यूज किया? ए, बी. बी. तो उन्होंने अपने संस्कार को उस समय यूज किया, उनकी चॉइस. मैं अपने संस्कार को यूज कर सकती हूँ, इसका मतलब. And that time I have a choice, either to be cool, to be quiet, to be understanding. क्योंकि उन्होंने अपना संस्कार यूज किया. Can I use my संस्कार which I want? And when I have this kind of feeling, I will use my sanskar, they will use their sanskar. So my sanskar gets importance, and they will use whatever they have, and I go on using it. Once I use it, I like it because it is positive anyways. Because as it is, whenever the situation finishes, I realize कि अरे नहीं बोलते तो अच्छा, ये नहीं करते तो अच्छा. तो ये जो रिग्रेट था वो मेरा बाद में का स्टॉप हो गया. तो
उस समय मेरी विक्ट्री फीलिंग, बाद में का रिग्रेट स्टॉप, सो टाइम वेस्ट कम, और धीरे धीरे आई डेवलप दैट संस्कार, उसमें मास्टरी आएगी। और जितनी मास्टरी आएगी, नाउ कम व्हाट में, चाहे वो कितना भी जोर से कह दे, कुछ भी हो जाए, मैं मेरे संस्कार अकॉर्डिंग एक्ट करती हूँ। हाउ मेनी ऑफ अस फील कि दिस विल रियली क्रिएट अ चेंज in the other person whom I am dealing with regularly? If I don't change my sanskar, or if I always have the option, give myself a choice, how many of you feel that there would really be a change in other person? लगता है चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes, 100% there would be change. So when I don't change, I create change in others, and that is the victory. The first victory, I don't change. Second, the change in others certain है. और फिर आप देखो, therefore there is always one person who needs to be patientful, who needs to be calm, cool, understanding. सब गड्ढे में गिर जाए, अगर एक भी गड्ढे से बाहर है तो क्या हो जाएगा? वो सबको निकाल लेगा। लेकिन सबके सभी गिर जाए तो तीनों घर फैमिली मेंबर्स में एवरी वन ऑफ देम, ये बेटा भी इतना गुस्से वाला, फादर भी ऐसा, तो हस्बैंड भी ऐसा, इन लॉज भी ऐसे, नो प्रॉब्लम। कौन चाहिए? एक बाहर चाहिए। और वो कौन बाहर होगा? जो रोज ट्यूसडे को सेशन लेता है। Can you expect others, those who have never taken any sessions, to be so cool, calm, composed? Can we expect? So who are the ones to change the family and the company around you? You are the ones. So if one of us, therefore if we can change, my patience will become a victory for me and a reason for change of to others. और फिर finally सब कुछ करके भी, forget about others changing or not changing, I becoming victorious or not, but actually when I use these choices, first of all, I am really becoming an asset for my body. मेरे शरीर का कितना बड़ा रीजन ऑफ ये अगर बीमारी का देखा जाए, is your own sanskars. This is very clear nowadays. Medical, कुछ भी बड़े से बड़ी न्यूरॉन डिजीज आती है, इवन कैंसर, एवरीवन गोज टू द लाइफस्टाइल। फिर हम कहते हैं लाइफस्टाइल ऐसी है। लाइफस्टाइल क्या ऐसी है? एक्सरसाइज रोज कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस भोजन कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में 5 M व्हाइट कलर कुछ नहीं खाते, ना मैदा खाते, ना चीनी खाते, दिस ऑल थिंग्स वी आर ऑब्जर्विंग। बट फिर कौन सा लाइफस्टाइल? लाइफ का स्टाइल, व्हाट इज दैट लाइफ? लाइफ इज द सोल। तो वो लाइफ, वो सोल का स्टाइल जो है वो चेंज करना है। तो वो सोल का स्टाइल चेंज नहीं किया, एंड डॉक्टर्स आर जस्ट सेइंग लाइफस्टाइल डिजीजेस है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस है, डायबिटीज लाइफस्टाइल है। क्यों? द सोल की जो स्टाइल है, एंड कौन सी स्टाइल है? यही स्टाइल। कोई कुछ कहे, कोई कुछ हुआ, तुरंत मुझे रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत मुझे है ना ये आ जाता है। आई जस्ट कैनॉट कीप क्वाइट। बहुत देख लिया, चुप रह के, कुछ मिलता नहीं है। तो ये जो स्टाइल है ना, दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो आई एम एक्चुअली बिकमिंग अ ब्लेसिंग फॉर माई ओन बॉडी। और एक बार ये बिगड़ जाती है, फिर हम क्या कहते हैं? डायबिटीज की गोली कब तक लेनी है? बीपी की गोली कब तक लेनी है? हार्ट की गोली कब तक लेनी है? खाली मैनेजमेंट चलता है, चीज तो बिगड़ गई है। जैसे वो गाड़ी खटारा हो गई है, बस उसको रिपेयर करके चलाते जा रहे हैं।
और क्योंकि वो रिपेयर होके चलते हैं ना, थोड़ा सा कुछ किसी ने किया या इतना सा कुछ आपने क्लच ज्यादा दबा दिया, वो फिर पूरी खराब हो जाती है। तो जो रिपेयरिंग वाली चीज होगी, सो इफ माय नेचर इज इन दैट रिपेयरिंग मोड, कि बस चल रहा है, आप चुपचाप से बैठे तब तक बैठे, लेकिन अंदर तो वोल्केनो चल रहा है, तो कुछ इतना सा किसी ने कुछ किया, मेरा तुरंत रिएक्शन हो जाता है। बिकॉज इमीडिएटली जो चीज रिपेयरिंग वाली काम चल रही होती है ना, उसको खराब होने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इतना सा किसी ने धक्का दे दिया, खत्म, जाओ गैरेज में। क्यों? बहुत रिपेयरिंग से चल रही थी। तो इसी तरह हमारा जो स्पॉन्टेनियस नेचर है, जो तुरंत रिएक्टिव, बिना सोचा समझा बोल देना, एक इम्प्रेशन वाली लाइफस्टाइल है, इसने ऐसा करता है, ये तो हमेशा ही ऐसा करता है, दिस लाइफस्टाइल से जब हम एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, और समटाइम्स इट इज माय नेचर, आई ऑलवेज कीप impressions of people and I accordingly deal with them. These are nothing but a repairing wali life. It's my car is never perfect. It is just repairing going on. And कोई भी परिस्थिति मुझे तुरंत खराब कर देती है। तो इसलिए क्या करना है? सिंपल स्टेटमेंट है, नेवर मेक अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हर्ट, फॉर माई एनी रिएक्शन. दिस इज अ विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव एनर्जी. क्योंकि जितना मैं रिस्पॉन्सिबल करती रहती हूँ, क्योंकि इसने ऐसा कहा, तुम्हारी वजह से मुझे हर्ट हुआ, तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया, तुम्हारी वजह से मुझे शक होने का, मैं शकी हो गई हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा धैर्य समाप्त हो गया, बच्चों के कारण ऐसे हुआ, मेरा ऑलवेज किसी के वजह से मेरा संस्कार बढ़ा, तो मेरे लिए रीजंस मुझे मिलते जाएंगे और मेरे संस्कार वैलिडेट होते जाएंगे. मतलब तुम्हारी वजह से मैं आज जो मुझे क्रोधी, आई एम बिकमिंग एंग्री, तो इट्स बिकॉज ऑफ यू. what actually we are speaking, my whole control is on all those people around me, जिसकी वजह से मैं आज ऐसी हूं. क्या मुझे शोभा देता है? I am a learned person, I am an educated person, and my whole energies are controlled by all people around me. Can I say I am very educated? Can we say I am an engineer? I am very educated. When I cannot have a little control on my choices, everyone else is controlling me. Chahe it could be hurt, chahe I keep quiet but under very suppressed way se, but others are controlling me. So what is patience? Patience matlab the you are 100% under your control. And when you are 100% under your control, you are actually not only becoming victorious, but you choose everything, all the feelings what you want. चाहे कुछ भी हो, कितना भी गलत कुछ भी हो, I still have a choice on what I want to feel. This is called mastering yourself. और जब ऐसी मास्टरी हो जाएगी तो क्या होगा? The way you will speak to others. आज छोटा सा बच्चा कल आया हमारे पास, कहता है नानी hurt me inside. Just see, they hurt me inside. छोटा सा बच्चा है, 5 years old child. Who taught him to be hurt? Inside कोई हर्ट कर सकता है कोई? ना हम क्या कहते हैं, नेचुरली ना, इतना जोर से फादर इन लॉ ने कहा, किसी को भी फील हो जाएगा, और फिर हम उसको पैट देते, कोई बात नहीं बेटा, नो इट्स ओके, नेवर माइंड, लेट गो करो. बट इनसाइड द फीलिंग इज, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, इन लोग ने ऐसे कैसे कह दिया,
So wordings are, we are petting the child, be positive, be, but energy में थोड़ा सा भी है, ऐसे कैसे कह दिया? The message what is going to the soul, ऊपर से वो चुप है लेकिन अंदर से वो फील कर रहा है कि नो, they are wrong, they are the reason for my cry, and I am in validating, I am endorsing their nature of being hurt. फिर थोड़ा सा हम भी कुछ कह देंगे ना, तुरंत वो बच्चा हर्ट हो जाता है, ले नहीं पाता है, एंड देयरफॉर बच्चे आजकल बहुत सेंसिटिव हो गए हैं. आई मस्ट हैव टोल्ड यू इन दिस प्लेटफॉर्म वन इंसिडेंट, क्योंकि वो रिसेंट हुआ था. 14-year old चाइल्ड, पेरेंट्स वो आए थे मतलब कहीं से, रात की 12 o'clock हो गए, पेरेंट्स वर वेटिंग, द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, एंड फिर जब आया तो थोड़ा नशा भी किया हुआ था, कुछ ऐसा था, एंड थोड़ा माँ ने कह दिया कि बेटे इतनी लेट और ऐसे करते हो, थोड़ा वो फोन तो कर दिया करो. कुछ नहीं बोला, एकदम स्ट्रॉन्ग विजन से पेरेंट्स को देखा, टेरेस पे गया और खत्म, खेल खत्म. अब वो दोनों, उन दोनों के बीच में झगड़े, और वो झगड़े आज 1 साल हो गया. ही इज ब्लेमिंग हर टू बी रिस्पॉन्सिबल, शी इज ब्लेमिंग हर हिम टू बी रिस्पॉन्सिबल. तुम्हारे कारण, वो कहते हैं तुम्हारे कारण. एक लॉस तो हो गया, दूसरे इतने टेंशन्स हो गए कि अब दोनों बहुत हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कार्डियक अरेस्ट की गोली में है. क्या रीजन है? उस बच्चे को कभी ये नहीं सिखाया कि शांति से सुनना भी होता है. क्यों? क्योंकि उसने कभी देखा नहीं होगा पेरेंट्स को कि भाई ऐसे शांति से सुना भी जाता है. यू जस्ट डोंट नो आवर संस्कार, हाउ दे आर अफेक्टिंग the immediate family members around me, and we just don't know what could be the future if this संस्कार develops in them. हमारा हर्ट का संस्कार तो हम चुपचाप रह गए, हमने तो फिर भी कुछ नहीं बोला बड़ों के आगे, हमने तो पी लिया, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो हर्ट के संस्कार जाएंगे वो किस क्या रिजल्ट आएगा, वी जस्ट डोंट नो. फिर हम कहते, हम भी, हमको भी कहा जाता था, हम लोग तो कभी इस तरह के रिएक्शन नहीं किए थे. इट्स ओके, आपने नहीं किया, बट आपने हर्ट का तो किया ना. एक संस्कार तो एसेट में हमने दे ही दिया ना, बाय बीइंग दैट संस्कार. एंड दिस संस्कार वो किस तरह यूज करते हैं, यू जस्ट डोंट नो. व्हाई अलाउ देम टू इवन नो कि दिस नेगेटिविटी है इस दुनिया में. जब वो पेरेंट्स में नहीं देखेंगे ना, उनको लगेगा ही नहीं कि दुनिया में भी ऐसे संस्कार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार ही नहीं होगा. दिस इज, सो वी आर वेरी प्राउड कि जब हम द एनर्जी जिसमें हम पले बड़े, हमको पता ही नहीं कि क्रोध कुछ होता है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी सॉ इन द पेरेंट्स. एंड देयरफॉर वो संस्कार ऑटोमेटिकली, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू फील throughout is actually what you give to your child. This is the asset we give to the child. कैसी एसेट देना है बच्चों को? पैसे दो, एजुकेशन दो, बट ये प्रॉपर्टी दो, बट दिस बिगेस्ट एसेट भी वो उसको दो. एंड फॉर दैट यू जस्ट हैव टू बी. तो इजी है टू बी? इज इट पॉसिबल टू बी? फॉर दैट, तो इसलिए ये वाला कि किसी के वजह से हम ये है, ये वाला स्टेटमेंट आज निकाल देना है. हमें क्या करना है? दिस होमवर्क, कुछ भी
हो जाए CCTU। CCTV है ना, तो इसलिए CCTU याद रखें। कूल, कंपोज्ड, टॉलरेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। एनी सिचुएशन में आई विल यूज दिस CCTU। पॉसिबल है। एंड सेकंड, आई विल नेवर ब्लेम anyone. I'll never make anyone responsible for my anger, for my hurt, for my doubt, whatever sanskar. When I this to homework, अगर हम कर सकते हैं, not only हम अपना life change करेंगे, but you don't know how it will go a long way ahead in many people, many lives around me. Okay? तो ये संस्कार को ये थोड़ा समझे, अंदर संकल्प करे और अब बाबा से वो एनर्जी लेंगे। यस, अब से मैं ऐसे करूंगी। तो अपने आप को 1 मिनट एकदम साइलेंस में करते हैं। मैं प्योर एनर्जी हूँ, पीसफुल एनर्जी। आई एम वेरी पेशेंट। I will always be cool. कोई कितना भी heavy reaction है, I'll be cool, composed, tolerant, understanding. और अब चलते बाबा के पास, द सुप्रीम लाइट। आई एम गिविंग एनर्जी, द रेज, द संस्कार फ्रॉम बाबा। उसकी किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है। I, the soul, am getting powerful rays from the Supreme Soul. It's going into me. And it is strengthening me, the soul. So now, having energized myself with the rays of the Supreme, अब मैं सोल नीचे आती हूँ। और नाउ विजुअलाइज करते हैं आप गए कलीग के पास, हेवी नेचर है उनका, आपने बहुत अच्छे से बताया उसके जो भी संस्कार है, आप, मैं आत्मा
एकदम साइलेंट, with positive note, with understanding. मैं उस सिचुएशन में शांत रही। इसी विक्ट्री, ऐसे विक्ट्री पूरे दिन मुझे मिलती रहेगी। I will be patient today. I am the master of myself. I am the master of my feelings. Om Shanti. Om Shanti. Today Deepika Ben is also there. Yes, Om Shanti, Didi. Yes, Yeah. Didi, I was in Singapore, so I had time, so I joined. So what you have to Thank say to the you know, group? Didi, very Patient. powerful. This knowledge always helps you. मुझे तो शुरू से ही ऐसे लगता है कि ये जब आपको ये नॉलेज मिलती है तो एटलीस्ट अवेयरनेस होने से आप अपने आप को अवेयर होने से बहुत कुछ मदद मिलती है, फिर आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। और अभी जो 17 तारीख को हम जा रहे ORC, उसके लिए भी जो आई मीन आ रहे उसके लिए भी सबको बहुत अच्छा और आनंद लगेगा, क्योंकि बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। एक दीदी, एक तो ऑनलाइन सुनने और एक लाइव सुनने, और आशा दीदी से सुनने जो इतने नॉलेजेबल और इतने सालों से ज्ञान में वो हैं, उनके द्वारा भी जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ORC का तो एक्सपीरियंस ही अलग है, एक वाइब्रेशन माउंट आबू से अलग है, पर वो भी एक तो डिफरेंट है। First step is ORC, then next step would be Mount. Yeah. Mount Abu is almost it's heaven like है. one of a lifetime experience, जहाँ सबको ले जाएंगे बाबा के घर एक Right, बार। right. So thank Very you, good. Thank you very much. thank you. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi, and thank you, ma'am, for joining. And thank you to everybody else also for coming. Let us meet the next week for the third session. Om Shanti. Have a nice day.